Okay, good morning my dear students. We discussed Euclid geometry in last class, day 15 part 1. Introduced the Euclid geometry. Now day 15 part 2. In the Euclid geometry, you know that it is the definitions chapter. It means we define some geometrical points like what is the point. You already know what is the point. Point. Then you know that point is a dot. Point is a dot. It is a dot which has no length, breadth and height. Point is a dot which has no length, breadth and height. Here and point is a end of line. Point क्या होता है कि लाइन का एंड जहां भी होता है वह क्या होता है, पॉइंट होता है. देन आफ्टर line. Line means if you want to make a point, then require 2 points. It means a line starts from one point to another. Without joining the 2 points, we can't make the line. बिना हम 2 पॉइंट को ज्वाइन किए लाइन नहीं बना सकते. ठीक है. Then if you want to make a point, then minimum require 2 points. Here it means a line starts from one point to another. Understood? Or you say the path of point is no. It is the point, and path means it means you can join all the point. Then we got the line, and it is increases both sides indefinitely. Then after ray. Ray means you know that it is a line. Here both ends are increases both sides indefinitely. But ray just like a sun. Guys, you already say sun rays. That means there one end is fixed. It means a line which one end is fixed. Here a line which one end is fixed. It is A and it is B. Then it is called the ray. Ray is also known as the half line. Half line. Ray is also known as the half line. Suppose here A and B. If you want to represent any line, then it is represented by this way. It means the line passes through A and B. It means the line increase with the end A as well as increase with the end B. But if you want to represent a ray, then it is denoted by this way. It means the ray starts from point A and increases indefinitely through the point B. ये जो रे है यह इसका एक एंड फिक्स है जो A वाला एंड है और ये B से होके पास कर रहा है. ठीक है. तो जब कभी भी आपको रे रिप्रेजेंट करना होगा तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे. रे इज आल्सो नोन एज द हाफ लाइन. सी हाउ इट इज कॉल्ड द हाफ लाइन. You know that line is increases both sides indefinitely. If we cut the line, then we consider it is the half of the complete. तो हम क्या करेंगे, यह जो है जो भी है यह पूरी लाइन का आधा है.
तो पूरा लाइन मतलब यह 0 से स्टार्ट होगा, जहां से स्टार्ट करते हो वहीं से 0 होता है। जैसे मान लीजिए आप सलेमपुर से चलोगे देवरिया के लिए, तो क्या होता है, जहां सलेमपुर से आप जर्नी स्टार्ट करते हो सलेमपुर 0 किलोमीटर होगा, और देवरिया जब आप कंप्लीट करोगे तो यहाँ 30 किलोमीटर लिखा होगा। तो और आगे जहां भी आपको जाना हो तो यह आपका 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 0 के इधर सब निगेटिव होता है और 0 के इधर सब पॉजिटिव होता है। तो यह जो पूरी कंप्लीट लाइन है वह 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हाफ लाइन बोला जाता है। अब इसके बाद से लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, shortest distance between any 2 point is called the line segment, because here A and B are 2 point and you can join like this way also, then it is not the shortest distance. You can join like this way also, it is not the shortest distance. Which one is the shortest distance? Which are, this is the shortest distance. It means if you want to define the line segment, then you say the shortest distance between 2 points is called the line segment. Shortest distance between 2 points is called line segment. 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट बोला जाता है। या आप इसको ऐसे कहोगे कि अ लाइन विच बोथ एंड आर फिक्स, अ लाइन विच बोथ एंड आर फिक्स। यह लाइन है और इसका एक एंड ए है और यह बी है, ठीक है। देन दिस इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट, एंड इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट द लाइन सेगमेंट देन it is represented like this way. Here AB and we written like this. Then it is the representation of the line segment. You see its end are fixed. Clear? Then it is the line segment. It is the representation of the ray. You see its one end are fixed and another end is not fixed, and it is the representation of the line. Clear? And this is the point P. It is the representation of the point P. Clear? Then after we discuss what is the axioms. Before axioms we discuss what is the statement. Statement. Then my name is सूर्य प्रकाश मिश्रा. Here and I am I teach Hindi. Here there are 2 sentences. First sentence is my name is the Surya Prakash Mishra, and the second sentence is I teach Hindi. Clear? Then both are the statement and there will be chance it will be true or false. और यहाँ एक चांस होता है कि यह
सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज अ सेंटेंस which may be true or false. Statement is a sentence which may be true or false. स्टेटमेंट क्या होता है? एक सेंटेंस होता है जो सही या गलत हो सकता है। तो यह जो पहला स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, यह मेरा नाम सूर्य प्रकाश मिश्रा है, तो यह सही है। और दूसरा सेंटेंस है ही आई टीच इन हिंदी, तो यह गलत है। ठीक है, तो यह फॉल्स है और यह ट्रू है। तो स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस विच मे बी ट्रू और फॉल्स। देन आफ्टर थियरम। Theorem is a statement. Theorem is a statement which prove with the help of proof. Theorem is a statement which truth with proof। जो थियरम होता है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो सही होता है। कैसे? आप उसको प्रूफ करके दिखाते हो कि देखिए इस तरीके से यह सही है। जैसे आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है? इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल in any right angle triangle square of the longest side is equal to the sum of square of रेस्ट टू साइड। तो राइट एंगल ट्रायंगल में, यह राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और यह 90 डिग्री है और यह दोनों 90 डिग्री से कम है। तो इसके 90 डिग्री सामने यह AC है, तो AC इसका लॉन्गेस्ट साइड है। तो यह है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेस्ट टू साइड। तो दो साइड और कौन कौन? तीन साइड है, ट्रायंगल है, तो दो साइड कौन कौन? AB और BC। तो यह हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह थ्योरम है और यह सही होता है। और कैसे आप इसको सही करते हो? क्योंकि इसको प्रूफ करते हो। ठीक है, ऐसे ही थेल्स थ्योरम है। ठीक है, अब जैसे यह AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहां तक तो प्रूफ हो गया। अब एक होता है कोरोलरी। तो कोरोलरी क्या होता है? जैसे मान लीजिए थ्योरम है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यह और कैसे कैसे लिखा जा सकता है? AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इसी थ्योरम को आप ऐसे भी लिख सकते हो
आर BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, तो कोरोलरी कहां से आया? थियरम से। सम अनप्रूव्ड पार्ट ऑफ द थियरम इज कॉल्ड द कोरोलरी। थियरम के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो उसमें नहीं प्रूव किए जाते हैं, नहीं शो किए जाते हैं, वो किसमें शो किए जाते हैं? कोरोलरी में शो किए जाते हैं। आ रहा समझ में? अब इसके बाद से एक्सोम्स, Axioms means assumption. It is universal truth assumption related to arithmetic. It is universal truth statement जो एक्सोम्स होता है यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, विच रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स से रिलेट होता है, जैसे half is just like part is whole is greater than its पार्ट। एक स्टेटमेंट है कि होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यह जो है आपका मार्कर यह कंप्लीट है और ये इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट यहां से यह और दूसरा पार्ट यह। तो यह जो पार्ट है यह इस कंप्लीट से क्या है? छोटा है। ठीक है, और यह आप इसको यह जो कंप्लीट है यह पूरा मार्कर इस अपने कैप से बड़ा है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कहीं प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको आप मैथमेटिकली शो करोगे। कैसे मैथमेटिकली शो करोगे? आप इसका लेंथ मेजर कर लोगे और इस पूरे का लेंथ मेजर कर लोगे। जैसे मान लीजिए कि यह जो है आपका 4 सेंटीमीटर का 4 इंच का होगा और यह जो है 1 इंच का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मैथमेटिकली शो कर सकते हो। और फिर एक है पोस्टुलेट्स। Postulates related to the, it is also universal truth. It is universal truth statement related to geometry। एक यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट होता है जो ज्योमेट्री से रिलेट होता है। जैसे इफ यू वांट टू मेक अ सर्किल देन वी रिक्वायर 2 पॉइंट, वन इज द सेंटर एंड अदर इज द रेडियस। क्लियर? इफ यू वांट टू मेक अ सर्किल देन वी रिक्वायर 2 पॉइंट, वन इज द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड अदर इज द रेडियस। इट मीन्स इफ यू वांट टू मेक अ सर्किल देन we require 2 things. One is the center, means fixed point, and fixed distance. That's we get the circle. It is the postulates. It means postulates relate with the geometry and axioms relate with the mathematics, or you say arithmetic. Here, and
देयर इज बोथ आर द यूनिवर्सल ट्रूथ। क्लियर? यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक वैसे ही जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य किस दिशा में निकलता है? पूरब में निकलता है। तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि सूर्य पूरब में कैसे निकलता है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है जो हर जगह हर देश में सही है। ऐसे ही आप जो है, आप अभी सलेमपुर में पढ़ रहे हैं कि सर्किल बनाने के लिए क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। आप देवरिया पढ़ेंगे, गोरखपुर पढ़ेंगे, दिल्ली पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे तो वहां भी आपको सर्किल बनाने के लिए सेंटर और रेडियस ही चाहिए होगा। इसीलिए यह यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है और ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इसलिए यह पोस्टुलेट्स है। आ रहा समझ में? तो इस तरीके से हम एक्सोम्स और पोस्टुलेट्स को डिस्कस किए। अब आपको इस चैप्टर में कुछ एक्सोम्स हैं और कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उसी को हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद से यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।